Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is writ jurisdiction under the Constitution of India, Part 6, mixed in Hindi and English. Part 6 relates to writ of mandamus. I have divided Part 6 into 4 subparts: A, B, C, and D. A. Mandamus in general. B. Nature and purpose of mandamus. C. Against whom mandamus does not lie. D. Who may apply for mandamus? Now let us detail subpart A, mandamus in general. रिट क्या है? लेक्चर 5 में बता चुका हूं रिट क्या है. Writ is a formal and authoritative order of sovereign authority. Formal and authoritative order of sovereign authority. In Indian context, it is a formal and authoritative order of the Supreme Court or of the High Court. रिट क्या है? आदेश है. कैसा आदेश? औपचारिक, प्राधिकारवान. औपचारिक से तात्पर्य लिखित, हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित से है. Formal means it must be written, it must be signed, and it must bear the seal. Authoritative means within powers, within jurisdiction. रिट पिटीशन, रिट याचिका क्या है? रिट पिटीशन क्या है? फॉर्मल एप्लीकेशन, औपचारिक प्रार्थना पत्र, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो. It's a formal application made before the Supreme Court of India or before any of the high courts under Article 32 or 226, as the case may be. Formal application. Formal because it must be in writing. It must be duly signed by the petitioner and his advocate. It must be duly verified. औपचारिक प्रार्थना पत्र. औपचारिक प्रार्थना पत्र है अर्थात लिखित प्रार्थना पत्र है, हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र है तथा विधि के अनुसार सत्यापित प्रार्थना पत्र है. Point number 2.
Mandamus. It's a Latin word. Like habeas corpus, it is also a Latin word. बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा परमादेश, इसे परमादेश कहते हैं। मैंडामस का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग है टू कमांड और वी कमांड, समादेशित करना या हम समादेशित करते हैं। Mandamus is a Latin word. Its English equivalent is command. What is command? समादेश क्या है? Command is sovereign's directive. Command means sovereign's directive. संप्रभु का निर्देश। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में संप्रभु से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से है। Sovereign here means, in Indian context, the Supreme Court of India and the High Courts. So it is the directive of the Supreme Court or of High Courts. Now, third point. देखिए, लोक प्राधिकारी है, लोक प्राधिकारी है। लोक प्राधिकारी का कर्तव्य है लोक कर्तव्य। लोक प्राधिकारी लोक कर्तव्य के अधीन होता है। अ पब्लिक अथॉरिटी इज अंडर अ पब्लिक ड्यूटी। तो उसे यह पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। If I am a public authority, I must perform my public duties. Public duties may be under the Constitution. It may be under some statute. लोक कर्तव्य या तो संविधान द्वारा आरोपित होगा या यह विधि द्वारा आरोपित भी हो सकता है। लोक प्राधिकारी हैं, लोक कर्तव्य है, लोक कर्तव्य का पालन कीजिए, निष्पादन कीजिए। लोक कर्तव्य आरोपित होता है या तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या किसी स्टैट्यूट यानी संविधि द्वारा। लोक प्राधिकारी अपने पब्लिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। फलतः पिटिशनर के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे लीगल इंजुरी हो रही है। I am a public authority, I am under public duty, I should perform my public duties, but I am not. नतीजा, आप याची के अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको विधिक पीड़ा हो रही है। मुझे निर्देशित करवाइए, चलो पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करो। I may be commanded by the writ of mandamus to perform my public duties under the Constitution or under any statute. पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक ड्यूटी छोड़ के भाग जाएगी, और अगर भाग रही है तो फिर उसे कमांड किया जाएगा, चलिए अपनी पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म कीजिए।
So, by mandamus, a public authority is commanded to perform his public duties. यहां पर एक बात ध्यान करिए, कुछ पब्लिक ड्यूटीज मैंडेटरी नेचर की होती हैं, आज्ञापक प्रकृति की होती हैं। कुछ पब्लिक ड्यूटीज डिस्क्रिशनरी होती हैं, वैवेकीय होती हैं। कोई बात नहीं, public duty is public duty, whether it is mandatory in nature or it is discretionary in nature. Public authority has to perform his public duty, whether such public duty is of mandatory nature or it is of a discretionary nature. What is meant by public authority? लोक प्राधिकारी को समादेशित किया जाता है। लोक प्राधिकारी से तात्पर्य क्या है? मैं लोक प्राधिकारी हूं क्या? नहीं, मैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल हूं। मेरे खिलाफ रिट की मांग नहीं की जा सकती है, मेरे विरुद्ध रिट की मांग नहीं की जा सकती है। मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं। इस रिट की मांग लोक प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी? ये देखिए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, ही मे बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, और public authority, besides public authority, mandamus may be issued against government, against court, against tribunal, against a corporation or a company. इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। Mandamus cannot be issued against me. हैबियस कॉर्पस नहीं है, हैबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट मी। writ of habeas corpus can be issued against a private individual also, but writ of mandamus cannot be issued against a private individual. It can be issued only against a public authority. Under a duty to perform his public duties. Or mandamus may also be issued against government, against court, against a tribunal, against a corporation or a company. महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमादेश किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, जो लोक कर्तव्यों के निर्वाह हेतु आबद्ध हो। शासन के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायाधिकरण के विरुद्ध, निगम के विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। What shall be command? समादेश क्या होगा? बस यही, आप अपने लोक कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटीज। हाँ, ये भी हो सकता है कि स्पेसिफाइड एक्ट, अमुक कृत्य, निर्दिष्ट कृत्य करो या कि न करो, टू डू और नॉट टू डू अ स्पेसिफाइड एक्ट।
perform your public duties. Don't do this specified act or do this specified act. इस चीज के लिए समादेशन होगा, कमांड होगा. B point, B subpart. Nature and purpose of mandamus. परमादेश की प्रकृति क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है. प्रकृति समझते हैं पहले. It's remedial in nature. Mandamus is remedial in nature. It is not a writ of right. मैंडामस इशू किया जाए मेरा राइट है, नहीं, राइट नहीं है. इट इज नॉट ए रिट ऑफ राइट. उचित मामले में मैंडामस इशू किया जाएगा, उचित मामले में इनकार किया जाएगा. इट्स नॉट ए रिट ऑफ राइट. हैबियस कॉर्पस इज ए रिट ऑफ राइट. इफ माई पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इन्फ्रिंज्ड एंड आई हैव बीन इलीगली डिटेन्ड, habeas corpus is to be issued. That is a writ of right. Mandamus, no, it's not a writ of right. It is remedial. If you have a legal grievance, you will be afforded a remedy. तो पहला बिंदु क्या हुआ? यह remedial writ है, यह writ of right नहीं है, यह writ of correction भी नहीं है. कोई चीज संशोधित कर दिया जाए, यह आदेश संशोधित कर दिया जाए, यह निर्देश संशोधित कर, नहीं, यह संशोधन लेख नहीं है. इट्स नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन. ध्यान से सुनिए. इट इज अ रेमेडियल रिट. इट इज नॉट ए रिट ऑफ राइट. इट इज नॉट अ रिट ऑफ करेक्शन. By mandamus, a public authority is commanded to perform its mandatory duties. It may also be commanded to perform its discretionary duties. आज्ञापक कर्तव्य पालन करो, वैवेकीय कर्तव्य पालन करो, मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी और डिस्क्रिशनरी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए. ड्यूटीज, पब्लिक ड्यूटीज को दो भागों में बांटिए. पब्लिक ड्यूटीज ऑफ मैंडेटरी नेचर एंड पब्लिक ड्यूटीज ऑफ डिस्क्रिशनरी नेचर. So if it is a public duty of mandatory nature, आज्ञापक प्रकृति का है, तो रिट ऑफ मैंडामस जारी करके पब्लिक अथॉरिटीज को कमांड किया जाएगा, परफॉर्म करिए अपनी पब्लिक ड्यूटी जो कि मैंडेटरी नेचर की है. मान लीजिए पब्लिक ड्यूटी डिस्क्रिशनरी नेचर की है. जहां ठीक लगेगा वहां ये काम करिएगा, जहां ठीक नहीं लगेगा वहां ये काम ना करिएगा. डिस्क्रिशनरी पब्लिक ड्यूटी है. तो जहां डिस्क्रिशनरी पब्लिक ड्यूटी है, क्या वहां भी मैंडामस जारी हो सकता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैन मैंडामस बी इश्यूड अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी व्हेन हिज ड्यूटीज आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर? जबकि लोक प्राधिकारी का लोक कर्तव्य वैवेकीय प्रकृति का है, क्या तब भी उसके विरुद्ध मैंडामस जारी किया जा सकता है? आप कहिएगा हां, कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में. क्या हैं वे परिस्थितियां? देखिए. वायोलेशन ऑफ स्टैट्यूट, अधिनियम का उल्लंघन,
विधि का उल्लंघन। दूसरा, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क का अप्रयोग। तीसरा, मैलाफाइडी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, वैवेकीय शक्ति का, वैवेकीय कर्तव्य का दुर्भावनापूर्ण पालन, दुर्भावनापूर्ण प्रयोग। मैलाफाइडी इज अ लैटिन वर्ड, बोनाफाइडी, मैलाफाइडी, both are Latin words. Fourth, extraneous considerations. Extraneous considerations means irrelevant considerations. निरर्थक बातें। Public authority may be commanded to perform his public duties of mandatory nature, and also of the public duties which are of discretionary nature. In case of discretionary duties, mandamus may be issued if these or any of these conditions are satisfied. ये थोड़ा कंडीशनल है। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी करूं या ना करूं, डिस्क्रिशन है तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि आप अपने डिस्क्रिशन को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करेंगे, विवेक का मनमाना प्रयोग करेंगे। डिस्क्रिशनरी पब्लिक ड्यूटी है, लेकिन आप उसका परफॉर्मेंस कानून के खिलाफ जाके कर रहे हैं, इन वायोलेशन ऑफ द स्टैट्यूट कर रहे हैं, या दिमाग का इस्तेमाल किए बिना कर रहे हैं, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, या दुर्भावना से ग्रस्त होकर कर रहे हैं, या असंगत बातों पर कर रहे हैं। डिस्क्रिशन का यह मतलब नहीं हुआ कि आप मनमानापन करने लग जाएं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैन मैंडामस बी इश्यूड अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी commanding him to perform his public duties of discretionary nature? आप कहिएगा हाँ, यहां भी मैंडामस इशू किया जा सकता है, भले ही उसकी ड्यूटीज वैवेकीय प्रकृति की ही क्यों ना हो। ऐसा इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के अलावा मैंडामस से यह भी कमांड किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट, ये स्पेसिफाइड एक्ट करो, या ये स्पेसिफाइड एक्ट करने से विरत रहो। इधर डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस स्पेसिफाइड एक्ट। किसी खास एक्ट को करने या न करने का भी समादेशन किया जा सकता है। सी पॉइंट पर आइए। अगेंस्ट whom mandamus does not lie, किसके विरुद्ध समादेश जारी नहीं किया जा सकता है? तो आप कहिएगा भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, इनके विरुद्ध मैंडामस इशू नहीं हो सकता है। लेजिस्लेटिव बॉडी है, मान लीजिए पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कोई लॉ बनाने जा रहे हैं, मैंने मैंडामस की मांग किया कि इन्हें लॉ बनाने से रोक दिया जाए, क्योंकि जो लॉ ये बनाने जा रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। विधायी निकाय को अपना कार्य करने दीजिए, जब वो लॉ बना ले तब आप उसे चुनौती दीजिएगा। बीच में उन्हें नहीं रोका जा सकता। मैंडामस इशू करके
किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी को रोका नहीं जा सकता है, समादेशित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, मिनिस्टीरियल और इंफीरियर ऑफिसर, छोटा कर्मचारी है, मिनिस्टीरियल कर्मचारी है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, ऑफिस असिस्टेंट है, इनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, ये कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ये तो पास किए गए सुपीरियर द्वारा पास किए गए ऑर्डर का पालन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। मैं एक क्लर्क हूं, तो जो बॉस आदेश देंगे उसके अनुसार मैं काम करूंगा। तो बॉस के खिलाफ तो मैंडेमस इशू करा सकते हो, लेकिन मेरे खिलाफ आप मैंडेमस इशू नहीं करा सकते। मैं तो केवल आदेशों का पालन करता हूं, न कि कोई निर्णय लेता हूं। न ही मुझे निर्णय लेने की शक्ति है, न ही मैं कोई निर्णय ले सकता हूं। जो सुपीरियर्स हैं वो निर्णय लेते हैं, वे आदेश करते हैं, मैं तो सिर्फ उसका पालन करता हूं। आई एम ए मेंबर ऑफ मिनिस्टीरियल स्टाफ, इंफीरियर स्टाफ। मेरे खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती है। बॉडी नॉट इनकॉर्पोरेट, कोई ऐसी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, इट इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये निगमित निकाय नहीं है। तो जो निगमित निकाय नहीं है उनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। और एक और, प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं निजी व्यक्ति हूं, मेरे खिलाफ भी रिट ऑफ मैंडेमस लाई नहीं करेगी। Writ of mandamus would not lie against the President of India, Vice President of India, governors of the state, legislative body not incorporate, ministerial officer, or this private individual. इनके विरुद्ध मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। लास्ट, Subpart D. Who may apply for mandamus? परमादेश जारी किए जाने का अनुरोध कौन कर सकता है? होल्डर ऑफ ए राइट, होल्डर ऑफ ए राइट, प्रेजेंट राइट। ये नहीं कोई राइट है जो फ्यूचर राइट है, बाद में पैदा होने वाला, नहीं, एग्जिस्टिंग राइट। petitioner must be holder of an existing right, legal right. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में विधिक अधिकार विद्यमान है, वह मैंडेमस हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकता है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, मे बी अ पर्सन, आई मे बी, यू मे बी अ कंपनी, कोई कंपनी भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, मे बी एन इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था भी हो सकती है। तो हु मे अप्लाई? एनी पर्सन, एनी कंपनी, any institution may apply for issuance of mandamus. कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो भी मैंडेमस के लिए रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी ओर से मैं करूंगा, मैं उस कंपनी का जिम्मेदार अधिकारी हूं, मैं उस संस्था का प्रबंधक हूं, मैं कर दूंगा। मैंडेमस के लिए कौन आवेदन कर सकेगा? कोई व्यक्ति जो किसी विधिक अधिकार का वर्तमान में धारक है, होल्डर ऑफ अ राइट
in existence at present. Maybe a company also, maybe an institution also. On behalf of the company or institution, this person is filing a writ petition. कोर्ट मुझसे पूछेगा तुम कौन हो, आप कौन है याची? तो मैं कहूंगा कि मैं उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन की ओर से याचिका प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया व्यक्ति हूं. आई हैव ए राइट टू फाइल अ रिट पिटिशन फॉर इशुएंस ऑफ मैंडेमस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और द इंस्टीट्यूशन. अगर मैं अपने लिए मैंडेमस मांग रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मैंडेमस मांग रहा हूं कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए, तो कोर्ट पूछेगा तुम्हें अधिकार है उनकी ओर से याचिका प्रस्तुत करने का? मैंने कहा जी हाँ, ये ऑथराइजेशन लेटर है. आई हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द कंपनी और द इंस्टीट्यूशन टू फाइल अ रिट ऑफ मैंडेमस ऑन देयर बिहाफ. दूसरा, कोर्ट मुझसे पूछेगा आपने पब्लिक अथॉरिटी से न्याय की मांग किया? डिड यू डिमांड जस्टिस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, या सीधे यहां हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं सीधे नहीं आया हूं. आई अप्रोच द पब्लिक अथॉरिटी एंड आई डिमांडेड जस्टिस फ्रॉम देम, बट माई डिमांड वॉज मेट विद रेफ्यूजल. मैं पहले इन्हीं के पास गया था, इस लोक प्राधिकारी के पास ही मैं पहले गया और मैंने इनसे न्याय की गुहार लगाया कि किंतु इन्होंने उसे अनसुना कर दिया, अस्वीकार कर दिया. हाँ, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मत आ जाइएगा. आपके पास कितना ही राइट हो, राइट का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन पहले आपको पब्लिक अथॉरिटी से मिलना चाहिए और उनके सामने अपनी बात रखना चाहिए और उनसे न्याय की मांग करना चाहिए. अगर वो आपकी डिमांड को खारिज कर देते हैं, गलत तरीके से अनसुना कर देते हैं, तो आप आइए और उनके खिलाफ मैंडेमस इशू करवाइए. न्यायालय के समक्ष याची को यह भी कहना होगा कि उसके पास कोई इक्वली एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है. कहाँ जाए वो? कोई वैकल्पिक विधिक उपचार उसके पास नहीं है. समान प्रभाविकता का कोई वैकल्पिक उपचार उसके पास नहीं है. इसलिए उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ रहा है. कौन आवेदन कर सकेगा? अ पर्सन हैविंग एन एग्जिस्टिंग लीगल राइट. When the other party is under a statutory duty of performance. मैं विद्यमान विधिक अधिकार का धारक हूं और वह विपक्षी लोक कर्तव्य के अधीन है और वह लोक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है. उसके कारण मुझे विधिक क्षति हुई है. मैं उस लोक प्राधिकारी के पास गया था, मैंने उनके समक्ष अपना विषय उठाया और उनसे न्याय की मांग किया, किंतु वह इनकार हो गया. I demanded justice from him, but I was refused justice. I have no equally efficacious alternative remedy available to me. याची का यह भी कहना है कि मेरे पास कोई समान प्रभाविकता का वैकल्पिक उपचार भी नहीं है. यदि वह यह तीनों चीजें दर्शाता है तो न्यायालय उचित होने पर उसके पक्ष में मैंडेमस जारी कर सकता है और लोक प्राधिकारी से कह सकता है चलो अपने लोक कर्तव्यों का पालन करो, या यह स्पेसिफाइड एक्ट करो या ना करो. एक सिद्धांत है, ये देखिए, प्रिरोगेटिव रेमेडीज, रिट्स का नाम है प्रिरोगेटिव रिट्स, हाई प्रिरोगेटिव रिट्स. क्या हाई प्रिरोगेटिव रिट्स
या प्रिरोगेटिव रेमेडीज दी जा सकती हैं, जबकि याची के पास स्टैट्यूटरी रेमेडी है? नहीं। जब आपके पास स्टैट्यूटरी रेमेडी है तो आपको प्रिरोगेटिव रेमेडी नहीं दी जाएगी। प्रिरोगेटिव रेमेडी कैन नॉट प्रिवेल ओवर स्टैट्यूटरी रेमेडी. So if the petitioner has equally efficacious alternative remedy available to him, writ will be refused to him. Mandamus will be refused to him. This is all for today. Thank you very much.